नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि प्रबोधन। नमस्ते और बोधि प्रबोधन में आपका स्वागत है। बोधि प्रबोधन इज ऑल अबाउट इंसाइटफुल, डीप and detailed analysis of various editorials appearing across the leading newspapers of this country. बोधि प्रबोधन में हम देश के प्रमुख प्रिंट मीडिया अखबार और मैगजीन्स में आए संपादकीय लेखों का विस्तृत और गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये द्विभाषी होते हैं, हालांकि अखबार भले ही अंग्रेजी या हिंदी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए आज के बोधि प्रबोधन में हम क्या क्या कवर करेंगे इस पर नजर डालने। I will like to begin with a quick listing of the 5 editorials and articles that I will be covering and analyzing today. First of all, I will take up a wonderful editorial from Times of India, 3rd November, about the present situation in Pakistan and how the military might undertake a coup there and what it means for India-Pakistan relationship. सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया में आए इस लेख पर नजर डालेंगे जिसमें पाकिस्तान में चल रहे गतिरोध पर नजर है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। देन इन द सेकेंड एनालिसिस वी विल गो टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड विल टेक अप अनदर इंसाइटफुल लीडिंग आर्टिकल, व्हाई डाइवर्सिटी नीड्स सेक्युलरिज्म। विविधता को पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों होती है, उसको बड़ी गहराई से हम विश्लेषण करेंगे और आपको मैं समराइज पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा हिंदी में और इंग्लिश में, अपने माध्यम के अनुसार आप नोट कर सकते हैं। थर्ड एडिट वी विल टेक, द थर्ड एडिट दैट वी आर गोइंग टू टेक विल बी जीएसटी। इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 3rd नवंबर, हिंदू का 2nd नवंबर का था, ईटी एडिटोरियल 3rd नवंबर about financial services and the problems with the GST model law and what are the recommendations to remove। तो ये एक बिल्कुल अलग फील्ड का हो गया। हम सारे कोशिश कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स के ले सकें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही व्यापक स्तर पे हो सके। तीसरा एडिटोरियल हमारा होगा वस्तु एवं सेवा कर और वित्तीय सेवाओं पर पड़ने वाले प्रारूप कानून का असर और उसमें कितनी भयंकर कुछ कमियां इस संपादक को दिखी हैं। ये तीसरा एडिटोरियल होगा। चौथा, we will move to the Hindu newspaper and we will take up an article criticizing the government of India on its approach to the land acquisition problem, winking at the states। इसको बहुत बारीकी से हम समझेंगे कि किस प्रकार लेखक ये कह रहे हैं कि भारत सरकार गलत कर रही है। And the 5th editorial for the day will be on a raging issue, civil-military relations in India। In a democracy, what should be the nature of military-civilian relationships और सरकार इस बारे में क्या क्या कर सकती है। 3rd November, Times of India। So are we ready? As I had said, you must have a बोधि प्रबोधन notebook with you always। जब भी आप ये सेशन देखें तो कृपया एक डेडिकेटेड नोटबुक, बोधि प्रबोधन नोटबुक अलग से अपने पास रखें। All the points, analytical and otherwise, which I will be verbally discussing and which I will be showing in the form of slides on the screen, have to be noted down by you. If you are just watching, listening or hearing and enjoying, well, that is only partial fulfillment of the objective. You have to actually jot down stuff. It helps you improve your writing ability. It helps you do the proper coordination, eyes, mind, hands, stuff like that. And third, it helps you improve your handwriting over a period of time. ध्यान रखें, हर बोधि प्रबोधन सेशन में आपके पास अपनी खुद की बोधि प्रबोधन नोटबुक हो। जब भी आप देखें तो विस्तार से हर चीज को लिखें जो बोली जा रही है और जो स्लाइड्स में दिखाई जा रही है। यदि आप सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु वो केवल पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आपको पूरा फायदा उठाना है इन सेशंस का तो आपको हर चीज नोट करनी ही होगी। I hope the basic rule is absolutely clear. Before I move ahead, Bodhi Prabodhan is part of Bodhi Booster Premium Service, one of the best knowledge portal services, part of the premium version, which can help students and professionals develop tremendous analytical ability on matters of current and general awareness. Let's get started
with the very first analysis, the very first editorial for today, Times of India, Pakistan, prepare and wait. यह है हमारा आज का पहला संपादकीय जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. Prepare and wait. Political turmoil within Pakistan will prolong hostilities at the border. तो इस एडिटोरियल में इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है. पहले तो मैं ब्रीफ में आपको वर्बली समझा देता हूं और उसके बाद आपको स्लाइड में पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा. With Pakistani forces stepping up firing and shelling, Indian civilians living along the LOC and international border have increasingly come under attack. यहां से ये एडिटोरियल शुरू होता है. This editorial is basically telling us that over the past few weeks, the civilian military relationship within Pakistani establishment has deteriorated substantially. The direct manifestation of that has been increased hostility by the Pakistani armed forces on the India-Pakistan border. Now we know very well that the India-Pakistan border is also of two types. First is the international border and the second is line of actual control. On both these regions, along both these areas, the Pakistani shelling and firing has increased and the Indian Army or the BSF are retaliating in kind. The editorial then goes on to explain what would happen because of the Panama Papers leak and the recent Pakistani Supreme Court judgment ordering an inquiry as to what is the Prime Minister Nawaz Sharif's role in the entire scandal. It also talks about the impending retirement date of Pak Army Chief General Rahil Sharif, and then it connects the dots and tries to tell us what would be the overall impact of all this. ये संपादकीय मूलतः ये बता रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे नागरिक सरकार और सेना के बीच पाकिस्तान में संबंध लगातार बिगड़ते चले गए हैं, तो उसकी परिणति हुई है भारतीय सीमा रेखा पर जबरदस्त बमबारी से, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना बीएसएफ बराबर दे रही है और पाकिस्तान की अच्छी खासी क्षति हो रही है. यह संपादकीय उससे गहरे में जाता है और साथ में तीन चीजें बताता है. पहली चीज, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स लीक में जो नाम आया है और उससे पैदा हुआ तनाव, इमरान खान वगैरह वगैरह. दूसरी चीज, जो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि नवाज शरीफ साहब पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए पनामा पेपर्स मामले में. तीसरी चीज, जनरल राहिल शरीफ जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पास आ रही है, तो रिटायरमेंट डेट के पास आते आते क्या ऐसा तो नहीं कि वो तख्ता पलट की कोशिश करेंगे और ये सबका मिला जुला असर क्या होगा. दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल इज ऑल अबाउट. आई होप यू हैव गॉट द जिस्ट. But just understanding the gist is not enough, right? If we are preparing for any exam or if we are a professional trying to really sharpen our skills, we need to have written down points. Here are the written down points which I have prepared for you already. कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, देखिए जरा. Useful points for the first editorial. Please make sure that you at least note down these. English medium students may kindly note the English points. देखिए ये है पूरी समरी बिंदुवार इस संपादकीय पे. हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी के सारे पॉइंट्स, कम से कम इतने पॉइंट जरूर नोट करें. ये जो नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं, प्रबोधन नोटबुक, ये आपको कुछ महीने बाद जादुई असर दिखाएगी, ये हमारी आपको गारंटी है. लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये पहला सबक मिल गया. नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अलग अलग हैं. देयर इज एन इंक्रीज फ्रीडम ग्रांटेड टू बीएसएफ टू रिटेलिएट इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान फायरिंग अलोंग आईबी एंड एलओसी. बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल को पाकिस्तान की गोलीबारी से निपटने हेतु अधिक स्वतंत्रता दी गई है. ये बदलती सामरिक स्थिति का परिणाम है. ये हो गया दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु, इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान प्ले अ मेजर रोल इन एक्सटर्नल एग्रेशन शोन बाय इट्स मिलिटरी. Internal political dynamics of Pakistan
play a major role in the external aggression shown by its military. पाक सेना द्वारा दिखाई गई आक्रामकता का एक बड़ा कारण पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी है. ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं. एलओसी और आईबी अलग अलग है. द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड द होम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सेड दैट ही इज गोइंग टू सील अप, the government is going to seal up the entire international border within a limited time frame, which will go a long way in actually curbing terrorist activities. The second thing we saw was regarding the instability there, and the consequent second was regarding BSF, the freedom it now has to retaliate strongly. And the third point we saw was regarding the relationship between civil instability there and the consequent military aggression that they show. तो ये तीन बिंदु आपने समझे. फिर से स्लाइड दिखाता हूं आपको. इन्हीं बिंदुओं को फिर से चेक कर लें, कुछ मिस तो नहीं हो गया. और फिर चौथा और पांचवा बिंदु कवर करते हैं. आई होप यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग आउट ऑफ द फर्स्ट थ्री. नाउ वी गो टू द फोर्थ एंड फिफ्थ. द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी इनटू द पैनामा पेपर्स लीक has avoided the call by Imran Khan for Islamabad's shutdown. In the past few weeks, there was a lot of tempo being built by Imran Khan and his party over a proposed shutdown of Islamabad because he said that Nawaz Sharif is involved in the Panama Papers leak. However, the Pakistani Supreme Court has ordered the inquiry and so that call has been now shunned. पाक उच्चतम न्यायालय द्वारा पनामा पेपर घोटाले में जांच के आदेश से इस्लामाबाद का इमरान खान का बुलावा अभी के लिए तो टल गया है. ये चौथा बिंदु हो गया. ठीक है. लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट. द मिलिट्री कू, COUP, इज प्रोनाउंस्ड एज कू, नॉट कूप, may be imminent in Pakistan as General Rahil Sharif's retirement is close. India has to keep a close watch regularly. जैसे जैसे जनरल राहिल शरीफ, ध्यान रखिएगा, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ आपस में संबंधी नहीं है, केवल सरनेम सेम है. दे आर नॉट रिलेटेड ऑल्दो द सरनेम्स आर द सेम. जैसे जैसे उनकी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे सेना द्वारा तख्ता पलट की संभावना बढ़ती जा रही है. भारत को लगातार नजर बनाए रखनी पड़ेगी. वैसे तो 1947 के बाद से ही भारतीय सेना का और भारत सरकार का एक काम तो 24 घंटे फिक्स है, पाकिस्तान पर नजर बनाए रखो. ये इतना बड़ा हेडेक पाल के हम लोग बैठे हैं. यदि मित्रता हो जाए दोनों देशों में तो सोचिए कितनी तरक्की होगी. लेकिन चीन ये कभी होने नहीं देगा. मिलिट्री कू में बी इमिनेंट इन पाकिस्तान एज राहिल शरीफ रिटायरमेंट डेट इज इमिनेंट. तो आई होप द 5 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू. लेकिन इसमें सबसे मजेदार पॉइंट मैंने कवर नहीं किया, जो एडिटोरियल कहता है एंड में, अ मिलिट्री कू कुड अकर इन पाकिस्तान while that would be bad for Pakistan's fragile democracy, it would at least solve India's problem of who to talk to in Pakistan. हालांकि मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए तो घातक होगा, जैसे अभी तक होता आया है. लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी समस्या ये सुलझ जाएगी कि पाकिस्तान में बात करें किससे. तो स्मॉल humor a little bit of humor at the end of this article tells us that even the most serious issues can be tackled humorously. I hope the first edit is very clear. We move on to the second, which is a very, very heavy article. Naturally, from the Hindu. एक बड़े भारी भरकम लेख पर चलते हैं, निश्चित तौर पर हिंदू से. Why diversity needs secularism. देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक काम तो बिल्कुल तय है, मोदी सरकार की भर्त्सना करो. Over the past 2 years, personally speaking, I have been slightly surprised to see how completely anti-Modi government this newspaper has turned itself into. No newspaper should do that. If in the long run it wants to maintain its credibility, it must always give a balanced perspective. If you think Modi is all wrong, he must have some things going for him, some merits, at least point out those merits. But ठीक है, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है. आप पूरी तरह मेरी राय से असहमत हो सकते हैं. So let's see which article I am referring to. Why diversity needs secularism. A huge article written by Sheikh Mujibur Rahman. वो बांग्लादेश वाले नहीं, ये हिंदुस्तानी लेखक हैं भैया. The non-inclusion of the word secular in the original constitution cannot be a reason to recommend its removal now.
diversity as a political project can only be effective with secularism as a working foundational value. विविधता को पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? उसके बाद वो कहते हैं, अगर पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान के दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया तो यह कारण बिल्कुल नहीं हो सकता कि आज आप बोलें कि जो बाद में शामिल किया है उसको हटा दो। और फिर वो कहते हैं कि विविधता एक राजनीतिक प्रोजेक्ट के रूप में केवल तभी सफल होगा जब पंथ निरपेक्षता उसका कार्यकारी मूल्य माना जाएगा। सो नाउ if you go through this entire article, and you don't have to worry if you don't have the hard copy with you right now, it is okay. जो बोधि प्रबोधन की लिंक आप प्रीमियम सेक्शन में देख रहे हैं उसी के साथ में आपको ये सारे आर्टिकल्स की पूरा वेब पेज मिल जाएगा और आप वहां पे ये पूरा कंटेंट देख सकते हैं। ऑल कॉपीराइट्स आर फुल्ली एक्नॉलेज्ड, दिस इज बाय द हिंदू, और आप जरूर अपनी पर्सनल कॉपी खरीद के पढ़ें। और आपके रेफरेंस के लिए उस वेब पेज में हमने लिंक दे दी है। अब इस पूरे आर्टिकल की मैंने आपके लिए समरी बना ली है, मेरा काम ही वही है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट समरी ऑफ दिस ह्यूमंगस आर्टिकल विच इज माई जॉब एंड आई विल डू इट फॉर यू। Although remember, that does not take away from you the basic task of reading it on your own, because for understanding each and every difficult word, ultimately it's a personal tapasya you have to do, and I am very sure you are doing it. Let's see the summarized bulleted points list. बिंदुवार इसके सारांश की सूची जरा देखें। सेकेंड एडिटोरियल, यूजफुल पॉइंट। तो यहां हमने 7 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए लाए हैं। अब आप इसे ध्यान से देख लें। राइज ऑफ द राइट विंग हिंदू पॉलिटिक्स इन अयोध्या मूवमेंट 1980s एंड 1990s। 1980 और 90 के दशकों में अयोध्या आंदोलन से जन्मा हिंदू राजनीति का दौर। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल, देखिए हम आर्टिकल और एडिटोरियल दोनों शब्दों को आपस में एक्सचेंज करके यूज कर रहे हैं, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। The author says that during the 1980s and the 1990s, because the Ayodhya movement was launched by BJP, Bharatiya Janata Party, right-wing Hindu politics came into being. ये उनका पहला दावा है और वो उसको बड़ी हिकारत की नजर से देख रहे हैं। He is looking at it with a rather derogatory tone. Second point, BJP's stand has been that secularism has harmed Indian democracy badly due to vote bank politics, and India needs positive secularism and not negative secularism. This is a very, very crucial point which the author says is being used by BJP but is actually wrong. बीजेपी का कहना है कि पंथ निरपेक्षता ने भारतीय लोकतंत्र को वोट बैंक राजनीति के चलते भारी नुकसान पहुंचाया है और अब सकारात्मक पंथ निरपेक्षता चाहिए, नकारात्मक पंथ निरपेक्षता नहीं। यही बीजेपी का स्टैंड रहा है और ध्यान रहे ऑथर इसे नेगेटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं। So what is the author saying? That BJP's stand has been that secularism has harmed Indian democracy due to vote bank politics. Now opinion can be totally divided on it. You can have absolute polar opposite stands on this, and I mean you have to decide what you will choose. If you are going to be a future administrator, you have to tread the middle path, the neutral path. You cannot be a judge. You have to manage the administration, and so sabka saath, sabka vikas. And India needs positive secularism and not negative. What is positive secularism? Positive secularism would mean secularism for genuine secularism's sake, not for minority appeasement. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ या पंथ निरपेक्षता का अर्थ होगा वो पंथ निरपेक्षता जो वाकई में पंथ निरपेक्षता के लिए है, अल्पसंख्यक वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, द ऑथर बिटरली क्रिटिसाइजेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हार्पिंग ऑन द नेगेटिव ऑफ सेक्युलरिज्म्स प्रेजेंट फॉर्मेट एंड गिव्स एग्जांपल्स ऑफ हिज मीटिंग्स एंड अटरेंसेस। उसके बाद इस एडिटोरियल में क्या हो रहा है? इस एडिटोरियल में लेखक लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करते हैं। द ऑथर बिटरली क्रिटिसाइजेस प्राइम मिनिस्टर मोदी
by giving several examples of Modi's utterances across the world in various meetings where he has reminded people of this negative aspect of secularism in India. लेखक जो हैं इस लेख में हिंदू के लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करते हुए कहते हैं कि भाई मोदी जी ने दुनिया भर में सेक्युलरिज्म पे जब जब भाषण दिया, खासतौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट का गाना गाया है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये लेखक का पर्सपेक्टिव है और वो अपनी जगह शायद सही हो सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। BJP speaks of misuse and abuse of the word secularism for minority appeasement. बीजेपी का कहना है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए होता है। यह अंग्रेजी का चौथा पॉइंट है जिसका हिंदी मैंने अभी बना के दिया है। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स पर आइए। Ambedkar did not include the word secular in the preamble of our constitution. बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं किया था। ये फैक्ट है। दिस इज अ फैक्ट that Dr. B.R. Ambedkar did not include the word secular in the preamble of our constitution. This is not my opinion. This is a fact. It came through Indira Gandhi's 42nd Amendment in the late 1970s, and in 1947 Ambedkar had also opposed the word socialism. पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 1970 के दशक में 1975 के बाद इंदिरा गांधी जी द्वारा इमरजेंसी के दौरान लाए गए 42वें संशोधन से जोड़ा गया, यह हमें पता है। उसी तरह सोशलिज्म भी जोड़ा गया, समाजवाद भी जोड़ा गया। तो अब यहां पे ऑथर समझाते हैं कि उन्होंने सोशलिज्म क्यों नहीं ऐड करवाया होगा। अब देखिए यहां ऑथर की पर्सनल ओपिनियन भर भर के निकल रही है। द बिटर आयरनी, द वेरी स्ट्रेंज एंड ह्यूमरस आयरनी इन दिस आर्टिकल इज the author is expecting us to believe his opinion more than what the facts, historical facts are telling us. This, in some eyes, can be seen as really forcing a stretch of our imagination. Ambedkar did not include the word secularism or socialism in the preamble of our constitution. Ambedkar साहब ने न तो पंथ निरपेक्ष शब्द हमारी प्रस्तावना में डलवाया और न ही समाजवाद शब्द हमारी प्रस्तावना में डलवाया। ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज डॉक्टर आंबेडकर वॉज सो ब्रॉड माइंडेड, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, दैट ही सेड, ही मस्ट हैव सेड that the coming generation should be given the freedom to choose whatever model of economy they want to choose, whatever they think is correct for them. बाबा साहब ने समाजवाद शब्द क्यों नहीं जुड़वाया होगा संविधान की प्रस्तावना में? आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कौन सा आर्थिक मॉडल सही होगा यह चुनने के लिए स्वतंत्र हों, जैसा कि हुआ भी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अंततः एलपीजी लाया। दिस इज whatever Ambedkar must have visualized, given that wide scope of vision the man had, ultimately happened. In 1991, the PV Narasimha Rao government was forced to finally bring LPG, liberalization, privatization, globalization. तो अंबेडकर जी का विजन बिल्कुल सही था, तो सेक्युलरिज्म के लिए भी तो उनका विजन सही हुआ हो सकता है। ऑथर उस बात से सहमत नहीं होते हैं। पॉइंट देखते हैं वापस। 3 strands of secularism. The author then goes on to explain in this huge article the 3 strands. Strands का मतलब होता है सोच विचार की धाराएं। गांधीयन, नेहरूवियन एंड द अंबेडकर स्ट्रैंड। लेखक ने पंथ निरपेक्षता के 3 धाराओं को समझाने का काम किया, गांधीवादी, नेहरूवादी और अंबेडकरवादी। And the author says that Ambedkar version of secularism was based on human dignity, which is quite understandable. लेखक का कहना है कि अंबेडकर जी का पंथ निरपेक्ष विचार मानव गरिमा पर आधारित था, जो कि बहुत समझने वाली बात है। So, 3 strands of secularism हम यहां देख रहे हैं। अगला पॉइंट, there are no specific facts to prove why secularism was left out and why it was added later. The article is a series of personal assessments and analysis. ये हमारा असेसमेंट है, आखिरी बिंदु। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक तथ्य है ही नहीं। ये मजे की बात समझिए
जो ये बताए कि पंथ निरपेक्षता को हमने संविधान की प्रस्तावना में क्यों नहीं जोड़ा और बाद में क्यों जोड़ा। कोई भी फैक्ट या रिपोर्ट ऐसी मौजूद नहीं है सिवाय इस फैक्ट के कि इंदिरा जी ने 42वें संशोधन से उसे जुड़वाया। क्यों जुड़वाया, इस पर कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है। तो ये आर्टिकल दरअसल लेखक की अपने पूर्वाग्रहों से भरा हुआ एक लंबा चौड़ा पुलिंदा है। ये मेरा असेसमेंट है। यू मे चूज टू डिसएग्री, यू मे चूज टू अग्री। ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे और अदरवाइज वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग दैट। वी कम टू द थर्ड एडिटोरियल नाउ। आप प्रॉपर नंबरिंग करते चलिएगा और आज के बोधि प्रबोधन के कोड के साथ और तारीख के साथ सब कुछ करना। वी कम टू द थर्ड एडिटोरियल नाउ, द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल ऑन जीएसटी। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश को प्रभावित करेगा, जीएसटी पर स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर में हमने एक पूरा स्कोर बूस्टर रखा है जिसे हम अपडेट भी कर रहे हैं, उसे जरूर पढ़ते चलिएगा। ऑन द इश्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वी हैव प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट स्कोर बूस्टर which we have kept inside the Student Resources Center. You must keep referring to it. It's very important. And also on our open site, Bodhi Booster, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं उसका होम पेज, bodhibooster.com, जो हमारी वेबसाइट का होम पेज अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आपको रोज चेक करते रहना चाहिए और इसमें आपको बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स यानी कि बोधीस दिखाई देंगी, जिसमें आप इनके रेलेवेंट आर्टिकल्स जीएसटी के भी पा सकते हैं। इसको हम लगातार अपडेट करते चल रहे हैं, इसको पढ़ते चलिएगा। द रीजन आई डिस्प्लेड दिस राइट नाउ was just to remind you that a lot of effort by our team is going into keeping this knowledge portal active, and hopefully you will use it very regularly. So we come back to the editorial now. एडिटोरियल पर वापस आ जाएं। चलिए वापस आते हैं। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज डिजर्व अ बेटर जीएसटी। वित्तीय सेवाओं को एक बेहतर जीएसटी चाहिए। इसमें कुछ बड़े गंभीर आरोप मॉडल जीएसटी लॉ पर लगाए गए हैं, जो पढ़कर काफी डर लगता है कि मॉडल लॉ में इतनी गलती कैसे कर दी जीएसटी काउंसिल ने। द मॉडल लॉ मेक्स कंप्लायंस अ नाइटमेयर। अब ये मैक्रो इकोनॉमी से जुड़ा एक मुद्दा है जिसमें कई नॉन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को पसीने छूटने लगते हैं, तो हम उसको बिल्कुल आसान शब्दों में समराइज कर देते हैं आपके लिए। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. I am sure there's a big broad smile on your face. Let's see the points, the summarized points from ET 3rd November main editorial. The editor says that there are 4 serious concerns regarding the GST model law pertaining to financial services. This is a specific focus on financial services. संपादक कहते हैं कि जीएसटी प्रारूप कानून यानी कि जो मॉडल लॉ है जीएसटी का, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रावधानों पर 4 गहरी चिंताएं हैं। समझें गहरी चिंताएं क्या हैं और कहां गलती कर रहा है काउंसिल अगर कर रहा है तो। फर्स्ट, no financial services company, FS company, financial services company has a problem in paying due taxes, but we cannot make them responsible for deciding and paying ratio wise to center and states. It is the government's duty to do that. Hence, making all financial services as interstate transactions under IGST, and also for FSS vendors also to avoid accumulating unavailed input tax credit. सभी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियां पूरा कर अदा करना चाहेंगी, किंतु केंद्र और राज्यों को कितना कितना दिया जाए ये जिम्मेदारी कंपनियों की नहीं हो सकती, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अतः समाधान ये है कि सभी वित्तीय सेवाओं को आईजीएसटी के तहत लाया जाए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अंतर राज्य लेन देन दिखाकर समेकित जीएसटी लागू कर दिया जाए। लेट मी एक्सप्लेन what this means. See, financial services companies have to pay taxes on the services they give. They have no problem in doing so, hopefully. You cannot make it the company's responsibility to decide
how much of the total tax liability it will pay to center and how much it will pay to which state out of the whole bunch of states we have in India. This is because if the location of a physical server of a financial services company is taken as a parameter for levying of the tax, that would be pretty foolish because the customer may be elsewhere. And so in this kind of a seamless situation, it's not a very bright idea. So the best idea is to take that taxation liability under IGST, Integrated Goods and Services Tax, and also all the vendors of these financial services companies, they should also be taken under that so that unavailed tax credits may not keep piling up. तो पहला सजेशन ये था कि वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों को आईजीएसटी ने समेकित जीएसटी में ले लिया जाए. उन पर ये बोझ मत डालिए कि वो तय करें कि 100 रुपए का अगर टैक्स देना है या 50 रुपए का टैक्स देना है तो केंद्र को कितना दूं, राज्य को कितना दूं. क्योंकि होता यह है, कंपनी से अगर गलती हुई तो सीधे एक पेनल्टी का नोटिस आएगा और जेल जाने का नोटिस आएगा. आप कंपनी पर यह जिम्मेदारी डाल के एंटरप्रेन्योरशिप को नेगेटिवली अफेक्ट कर बैठोगे. ये काम तो कम से कम सरकारों को खुद करना चाहिए. उस लिहाज से ये एडिटोरियल बिल्कुल सही बात कर रहा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही होता है जिसमें भारत की हालत बड़ी खराब चल रही है. पॉइंट्स पर वापस आते हैं. सेकंड, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स. ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है मॉडल लॉ में. सिक्योरिटीज मीन्स बॉन्ड्स, शेयर्स, दोज डॉक्यूमेंट्स. The model law is treating them as goods. Trade in securities cannot be taxed using the value of security. The capital markets will be destroyed. जो प्रतिभूतियां हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, आप उनको वस्तु तो मान नहीं सकते, मानना नहीं चाहिए. अब ये सिक्योरिटीज का लेन देन हुआ, व्यापार हुआ, खरीदा बेचा और आपने उसकी टोटल वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगा दिया. लोग खरीदना बेचना ही बंद कर देंगे भाई. सारे पूंजी बाजार बर्बाद हो जाएंगे. तो ये डेफिनेटली किसी ओवरसाइट का नतीजा है अगर ऐसी गलती हुई है तो. बिकॉज टेक्निकली इसका लॉजिक समझ लीजिए. अ बॉन्ड और शेयर इज नॉट वैल्यू एडिशन इन इटसेल्फ और बाय इटसेल्फ. इट इज अ यूनिट ऑफ कैपिटल गिवन टू दैट कंपनी दैट वांटेड टू रेज कैपिटल टू डू एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड इट इज जस्ट एन इनपुट टू द वैल्यू एडिशन प्रोसेस. इट इज नॉट द होल वैल्यू. सो प्लीज डू नॉट टैक्स द होल वैल्यू. वैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैपिटल, राइट? सो हाउ आर यू अप्लाइंग इट on the value of that security. प्रतिभूति अपने आप में मूल्य संवर्धन नहीं होती. प्रतिभूति जिस कंपनी को कैपिटल देने का काम करती है वो कंपनी जो करती है उसमें वैल्यू एडिशन क्रिएट होता है. तो ये दूसरा बहुत बड़ी कमजोरी बताई गई है. फिर से हम पॉइंट्स पर आते हैं. थर्ड, the model law taxes intra-firm supply of services which are not paid ones. The editor says that if you continue with this provision, it will create a nightmare of compliance and transfer pricing disputes. प्रारूप कानून, ड्राफ्ट लॉ, किसी भी फर्म, महाराष्ट्र में उसका हेड ऑफिस है और उत्तर प्रदेश में उसका फील्ड ऑफिस है, वहां से कुछ उसको सर्विस मिली हेड ऑफिस को, तो अपने अंदर तो इंट्रा कंपनी सर्विसेज का लेन देन हो रहा है जिसपे पैसा नहीं ले रही है कंपनी, उस पर भी कर लगा देता है. तो ये बिल्कुल गलत है, अव्यवहारिक है, क्योंकि इतना भयंकर कंप्लायंस का नाइटमेयर बन जाएगा और कर अधिकारियों के हाथ में इस तरह की डिस्क्रिशनरी ताकत आ जाएगी कि कंपनियों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनकी लायबिलिटी क्या खड़ी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर के एंड में. और इसलिए इन सबसे बचना है तो ये इंट्रा कंपनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट पेड वंस, उसको बिल्कुल माफ कर दिया जाए जीएसटी से. आई होप द टॉप 3 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. अब ये एक टेक्निकल इश्यू था इसलिए इसको इतनी बारीकी में जाके पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया है. एंड द लास्ट वन, द फोर्थ पॉइंट विथ विच वी कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल नाउ. पिछले बिंदुओं पर ही आते हैं, गलती से मैं अगले एडिटोरियल पे चला गया. यस, डू ऑल दिस फास्ट, देयर इज नो टाइम. अगर 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना है तो अब समय कहां बचा है. इन चीजों को जल्दी जल्दी कीजिए, अन्यथा बड़ी देरी हो जाएगी. I hope all these points are absolutely clear. So this was a beautiful editorial, and now we come to another heavy technical editorial from what else? The Hindu. 2 November, winking at the states. लैंड एक्विजिशन पर आधारित ये पूरा लेख है.
तो पहले मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूं क्या है और फिर सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। ये बिल्कुल बहुत भारी भरकम टेक्निकल है, बहुत बुरी तरह से टेक्निकल बनाया गया, तय करके टेक्निकल बनाया। The authors had decided we are going to make a very heavy and a technical article. It's a beautiful one anyway. इसकी समरी समझा देता हूं। विंकिंग एट द स्टेट 2 नवंबर। तारीखों में स्टेट वाइज कुछ अंतर शायद एडिटोरियल की वजह से, एडिशन की वजह से हो सकता है, सो प्लीज डू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। द ऑथर्स आर जयराम रमेश फ्रॉम कांग्रेस एंड मिस्टर मोहम्मद खान who seems to be an advocate or a lawyer. Absolutely. आप दोनों क्या कहते हैं? देखिए, इस एडिटोरियल में ऑथर्स ये बता रहे हैं कि भाई हुआ क्या है 2015 में, व्हाट हैज हैपेंड। पहले मैं इंग्लिश में समरी बता देता हूं, फिर हिंदी में, और उसके बाद पॉइंट लिखवाऊंगा। समरी तो आप सुन लीजिए। When the BJP government came to power in 2014, in 2015, in order to accelerate industrial activity, they wanted to reform a land acquisition act which had been created in 2013. That act was Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. इतना लंबा नाम है कि लेते लेते ही आदमी की आधी जिंदगी निकल जाएगी। Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. Now the BJP wasn't able to push this amendment through in the parliament, and hence the authors now allege the BJP has taken a via media. What is this via media? The BJP has, the central government that is, has allowed these states, all states, not just BJP ruled states, to make their own land acquisition acts and get them approved by the center. And then the center will send it for presidential assent. By doing this, the authors say, the BJP government at center is thoroughly misusing a provision of the constitution which allows a parallel state level law which is not entirely in consonance with the center level law, that is parliament mandated law, to coexist in order to overturn what the parliament had done earlier. ये आरोप लग रहा है बीजेपी की सरकार पे. This is an allegation against the BJP government. The article also raises key constitutional and jurisprudential questions. And finally, the article also questions that you cannot take for granted the president's assent. He can at times simply refuse to give that. So this is the long and short of this article. अब हिंदी में फटाफट समझा देता हूं. 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करने का प्रयास किया. वे वैसा कर नहीं पाए. तो ये ऑथर्स कह रहे हैं इस आर्टिकल के, मोदी सरकार ने राज्यों को यह अनुमति दे दी, सभी राज्यों को, कि आप अपने अपने स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून बना लीजिए. ऐसा करके मोदी सरकार ने कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कोई कानून जो राज्य बना के रख सकता है, भले ही वो केंद्रीय यानी संसदीय कानून से विपरीत भी जाता हो, उस स्वतंत्रता का भारी दुरुपयोग करके संविधान के तहत बनी संसद के तहत बने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को बर्बाद करने की कोशिश की है. और यह गैर संवैधानिक है और यह न्यायिक समीक्षा में खरा नहीं उतरेगा. इतने गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिए गए. अब आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया होगा ये सब सुन के जो मैंने बोला, तो आपका ब्लड प्रेशर कम कर देता हूं. पॉइंट्स देखिए. द सेंटर वॉज, बिल्कुल ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, ये पूरी समरी इतने बड़े भारी आर्टिकल की. द सेंटर वॉज अनेबल टू अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट इन 2015. केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को 2015 में संशोधित नहीं कर पाई. What was the name of the law? जरूर ब्रैकेट में लिख लीजिए, RFCTLARRA 2013. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. So it has allowed the various states of India to make their own laws and get them approved. अतः केंद्र ने सभी राज्यों को अनुमति दे दी कि वे अपने खुद के कानून बनाकर केंद्र से सहमति ले लें. तमिलनाडु एंड गुजरात हैव डन इट ऑलरेडी. तमिलनाडु और गुजरात ने ऐसा कर भी लिया. राजस्थान और तेलंगाना करने की प्रोसेस में है. राजस्थान एंड तेलंगाना वर्किंग ऑन इट.
दिस इज अ बैड आइडिया, ऑथर से दैट, ये बिल्कुल गलत है. द ऑथर्स लैम्बास्ट द मोदी गवर्नमेंट गिविंग 3 कंसर्न्स. और 3 चिंताएं ऑथर्स बता रहे हैं मोदी सरकार की भर्त्सना करते हुए, भारी भर्त्सना. अब इसमें कुछ संदर्भ हैं. देयर आर सम रेफरेंसेस इन दिस आर्टिकल विच आर वेरी यूजफुल, वो आप जरूर नोट करें. 4 रेफरेंसेस हैं भैया. आर्टिकल 254(1) अनुच्छेद 254(1), आर्टिकल 254(2) अनुच्छेद 254(2), आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123, 7th शेड्यूल लिस्ट 3rd, 7वीं अनुसूची सूची 3. ये चारों लिखिए अब एक एक करके क्या है. आर्टिकल 254(1) अनुच्छेद 254(1), द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, प्रवृत्त क्षेत्र सिद्धांत. आपको पता ही है संविधान अनेक डॉक्ट्रिन से मिलकर बना है. इफ अ सेंट्रल लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट देन अ स्टेट लॉ कैन नॉट ओवरराइड इट. यह है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड. यूनिटरी का मतलब यही है. यदि केंद्रीय कानून मौजूद है तो राज्य का कानून उसे ओवरराइड यानी प्रत्यादिष्ट नहीं करेगा. आर्टिकल 254(2) अनुच्छेद 254(2), if a state law gets presidential assent, it can exist in that state in contravention to the central law, but this is only for providing operational solution to implementation problem in that particular state. यदि किसी राज्य के बने कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो वो कानून उस राज्य में केंद्रीय कानून के विपरीत भी जीवंत रह सकेगा. लेकिन ये आजादी केवल इसलिए दी जा रही है कि जमीनी समस्याओं का समाधान अन्यथा नहीं हो पाता. So Article 254(2) is a bypass given in the Constitution, keeping in mind operational freedom and not constitutional freedoms. ऐसा लेखक कहते हैं. अब संविधान बनाने वालों ने क्यों दिया था? That was in their minds. Article 123 अनुच्छेद 123, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग. इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ये न्यायिक समीक्षा के तहत है. अब ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लेखक उठा रहे हैं. लेखक ये कहते हैं कि शायद मोदी सरकार ये मान के चल रही है कि राष्ट्रपति को यदि उन्होंने कोई भी कानून सहमति के लिए भेजा तो राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा देरी कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते. The authors say that perhaps the Modi government is assuming that if the cabinet sends a law, a proposed bill for assent to the president, at the most the president can delay it. He cannot deny it, refuse it. The authors say this is wrong because under Article 123, everything the president does legislatively is subject to judicial review. What does this mean? If it is subject to judicial review, it means the process of law making itself is subject to judicial review, and that means ultimately if it is taken to a court of law, Supreme Court for example, the court can easily override that law which was assented to by the president, and hence the Modi government should not automatically assume that they will be able to always get it done. अगर ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है तो मोदी सरकार ये मान के क्यों चल रही है कि हमेशा सहमति मिल जाएगी? ऐसा लेखक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा. और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये चला गया तो सुप्रीम कोर्ट तो न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत उसको खारिज कभी भी कर सकता है, तो आप ऐसा मान के मत चलिए. चौथा आ रहा है 7th शेड्यूल लिस्ट 3rd. इसमें ऐसे सारे कानून हैं जो सेंसिटिव मैटर है. लॉज ऑन सेंसिटिव मैटर लाइक फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा. सभी संवेदनशील मुद्दे जैसे कि वन, बिजली, परिवार नियोजन, शिक्षा आदि. तो अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट्स कानून बना बना के इनको ओवरराइड करेंगे तो ये शेड्यूल होने का मतलब क्या है? दिस इज द होल आइडिया. नाउ वी कम टू द कोर ऑफ द आर्टिकल, द 3 कंसर्न्स जो मैं ऑलरेडी अब समझा चुका हूं. अब हम वो तीनों चिंताएं समझते हैं. आप पॉइंट वाइज लिखते चलिए. Authors repeatedly harp upon the point that Modi government is wrong in allowing states to make land acquisition law legally, constitutionally and morally. Concern 1. लेखक लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार अनेक स्तरों पर गलती कर रही है राज्यों को यह आजादी देकर, क्योंकि 3 चिंताएं हैं. पहली चिंता, आर्टिकल 254(2) is being misused. अनुच्छेद 254(2)
का दुरुपयोग हो रहा है, पहली चिंता। कंसर्न 2, दूसरी चिंता, प्रेसिडेंशियल असेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोमेटिक, इट इज नॉट ऑलवेज सो। राष्ट्रपति की सहमति को स्वचालित मान लिया गया है, जरूरी नहीं है। कंसर्न 3, द 7th शेड्यूल 3rd लिस्ट हैज नो मीनिंग नाउ, 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची का अब कोई अर्थ ही नहीं बचा है। आई होप I was able to deconstruct and demystify this entire complex editorial article for you. इसको अच्छे से बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें गहरे में कूदने की जरूरत नहीं है, डूब जाओगे। We come to the last editorial, a beautiful one written by a military man, और जो अभी चल रही OROP डिबेट के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है भैया। The last editorial that I am going to take up now is extremely relevant in context of the huge debate, at times tragic, going on pertaining to OROP. टाइटल है, स्क्रीन पर देख लेते हैं न्यूज। इन अ डेमोक्रेसी द मिलिट्री शुड बी अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल बट डजंट हैव टू बी अंडर ब्यूरोक्रेसीज थंब। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइटल, ऑल्दो लॉन्ग वन। समरी सुन लीजिए, टेक द समरी। आफ्टर 1947, इसको अभी सुनिए, अभी लिखिए मत, फिर स्लाइड तो आ ही रही है। After 1947, it was very clear that in India, all the military will come under civilian government's rule. पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में। After 1947, it was assumed that all the military forces will come under civil government's rule, political rule. The mistake we committed was that we gave the military under the thumb of bureaucracy, not necessarily under the benevolent control of the political classes or the political executive, that is. Over time, this rift has widened, starting with Indira Gandhi, who in 1973 decided to do away with the similar grades for both civil and military अपॉइंटमेंट्स। वहां से ये सब OROP के झगड़े शुरू हो गए। Kargil war in 1999 forced the government of India to do a lot of thinking. So a committee was appointed to examine the Kargil situation, why the intelligence failures happened. Subramaniam was the head of that committee. The committee gave its report. In that huge report, one of the chapters recommended that the Ministry of Defence should be made the nodal ministry for all defence matters, management matters. It was done. 75 recommendations were given, most were implemented. But a very critical recommendation has been twisted and not recommended properly regarding a literal merging of the defence headquarters, services headquarters into the Ministry of Defence, so that military and civil both officers can work in true harmony. The author alleges that the bureaucrats, IAS and others, never wanted ever to be in a situation where they were reporting to a military superior, and hence the rift has been widening and it is not good for anyone. Quickly हिंदी में सारांश बता देता हूं। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये तो तय था कि भारत की सारी सेनाएं, सशस्त्र बल राजनीतिक नियंत्रण में आ जाएंगे, सभी आ भी गए। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ वो नौकरशाहों के जूतों के नीचे आ गए, ये गलत हुआ। फिर 1973 में इंदिरा गांधी जी ने नागरिक नियुक्तियां यानी कि प्रशासनिक और सैनिक नियुक्तियां, सैन्य नियुक्तियों के ग्रेड्स को भी अलग अलग कर दिया, जहां से OROP के डिबेट शुरू हो गए। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें पता चला कि भारत की इंटेलिजेंस फेलियर बहुत गहरी थी, खुफिया जानकारी और विभागों का समन्वय में गहरी कमी थी। तो फिर के सुब्रमण्यम कमेटी बनी, जिसने बहुत लंबे चौड़े रिकमेंडेशन दिए, जिनमें से ज्यादातर इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन केवल शाब्दिक रूप से इंप्लीमेंट हुए, भावना से नहीं। और ये खाई बढ़ती चली जा रही है और ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आई होप दिस कॉम्प्लेक्स मैटर वॉज एक्सप्लेन्ड वेरी सिंपली बाय मी। अब हम पॉइंट्स पर आ जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी ऑल द यूजफुल पॉइंट्स फॉर द 5th एडिटोरियल। अब इसको फटाफट लिखना शुरू कीजिए और सारे पॉइंट्स आपको
इस पूरे डिबेट का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप अच्छे से समझा देंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी एंड द आर्म्ड फोर्सेज नीड्स टू बी हेल्दी, पॉजिटिव, म्यूचुअल। भारत जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही और सशस्त्र सेवाओं के रिश्ते मधुर, सकारात्मक और परस्पर होने चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल है। मिलिट्री मस्ट बी अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल बट नॉट सबजुगेटेड टू द ब्यूरोक्रेसी। सेना निश्चित रूप से राजनीतिक नियंत्रण में रहे किंतु नौकरशाही के अधीन नहीं रहे। एन अनहेल्दी सिविल मिलिट्री डिवाइड इज नॉट गुड। एक अस्वस्थ नागरिक सैन्य दूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। द कारगिल रिव्यू कमेटी सेटअप इन 1999। तो ये पहला पॉइंट लिख लिया आपने, कंप्लीट कीजिए पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द कारगिल रिव्यू कमेटी सेटअप इन 1999 headed by K. Subramaniam to find reasons for massive intelligence failures। 1999 में श्री के सुब्रमण्यम के नेतृत्व में गठित कारगिल समीक्षा समिति ने खुफिया असफलताओं के कारण खोजने का प्रयास किया। Its recommendations led to major restructuring of Indian intelligence structure। उनकी अनुशंसाओं पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के ढांचे में बड़े भारी बदलाव वाकई में हुए। तो ये सब याद रखना, कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल समीक्षा समिति और श्री के सुब्रमण्यम। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM ऑन नेशनल सिक्योरिटी वॉज मेड। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह का गठन हुआ। इट गेव अ रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। चैप्टर 6 ऑफ इट्स रिपोर्ट मेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द नोडल मिनिस्ट्री। उसके छठे भाग में रक्षा मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया। एंड द रिपोर्ट बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मेड 75 रिकमेंडेशंस, मोस्ट हैव बीन इंप्लीमेंटेड। और इस रिपोर्ट में 75 अनुशंसाएं हुई, जिनमें से सिफारिशें हुई, जिनमें से अधिकतर लागू हो चुकी हैं। तो ये पूरा हिस्टोरिकल समरी आपको मिलती जा रही है पॉइंट वाइज। ध्यान रखिएगा, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स में, ऐसे टाइप में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब टेक्निकल मुद्दा ध्यान से लिखिए। दो नई चीजें बनी, HQIDS एंड ANC, हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड वर क्रिएटेड। ये ऐसी रिपोर्ट की वजह से HQIDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, समेकित रक्षा सेवाओं का मुख्यालय बना और अंडमान और निकोबार कमान तैयार की गई। HQIDS एंड ANC वर क्रिएटेड। अब आरोप, बट द सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, जिसका नाम बदल के HQIDS हुआ, पहले इसको सर्विसेज HQ बोलते थे, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर नेवर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली। किंतु HQIDS और रक्षा मंत्रालय को सही ढंग से समेकित कभी नहीं किया गया। बिकॉज वी कैन सी इवन टुडे दैट नो ब्यूरोक्रेट वांटेड टू सर्व अंडर अ मिलिट्री ऑफिसर एंड हेंस परहैप्स दे पुट अ लॉट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन दिस फाइनल इंटीग्रेशन। चूंकि कोई भी नौकरशाह यानी कि IAS ऑफिसर या दूसरे किसी भी सैन्य अधिकारी के नीचे बिल्कुल भी सेवा नहीं देना चाहते, ऐसा इनका आरोप है। हो सकता है ये सच नहीं हो, या कभी कभी सच नहीं हो, या कभी कभी झूठ हो, इसलिए यह समेकन कभी भी सही ढंग से हो ही नहीं पाया। ऑल्सो एक और आरोप, वी नीड गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली ट्रेन्ड इन डिफेंस अफेयर्स टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस। हमें विशेष तौर पर रक्षा मामलों में प्रशिक्षित नौकरशाह चाहिए जो रक्षा मामलों को ही बेहतर ढंग से समझ सकें। फाइनली the 6th and the 7th Central Pay Commission have created anomalies that are widening the rift। अंततः और अंत में 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने ऐसी गंभीर दूरियां पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। So this was the summary. Now I would like to show you another PIB release on this matter। अब एक और इमेज देखते हैं जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सुब्रमण्यम समिति पर बनी करगिल रिव्यू कमेटी के बाद जारी की थी। 14 मई 2012 की PIB रिलीज है। मैंने उसका URL ऊपर दिया है, अगर आप जाके देखना चाहें तो टाइप करके देख लीजिए PIB की साइट पे 83711।
The report of the group of ministers of national security constituted on the basis of the Kargil review committee report had 6 chapters. The MOD had been nominated as the nodal ministry. आज पढ़ा ना हमने. HQIDS has been created. ये भी पढ़ा. तो ये सब PIB ने 14 मई 2012 UPA 2 की सरकार थी तब ये बताया था. I hope the relevant connecting the dots is happening. So the author says कि OROP एक मुद्दा है. सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में जैसा इंटीग्रेशन होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है. और जब तक हम वो नहीं करेंगे ये इंटेलेक्चुअल संघर्ष समाप्त नहीं होंगे. बहुत अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा. वेब लिंक आपको मिल रही है, उस पर ये पूरा लिंक हम देंगे. ऑल कॉपीराइट्स एक्नॉलेज्ड. अखबार खरीद के पढ़िएगा. तो आज के जो 5 एडिटोरियल्स हमने देखे, द 5 एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स वी सॉ टुडे, आई होप द फर्स्ट वन रिलेटेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान. The second one related to diversity and secularism. The third one related to financial services needing a better model law of GST. The fourth one about the land acquisition law and the approach of BJP and the criticism of the authors against that. And the fifth one on the military-civilian relationship in India in the backdrop of the OROP, a debate going on. I hope these 5 give you a very well-rounded perspective. Bodhi Prabodhan will continue like this. Every week we will try to upload at least 2 new comprehensive sessions for you. Over the year you will have many more like this. बोधि प्रबोधन की ये यात्रा इसी तरह आगे जारी रहेगी. हर हफ्ते हम पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 सेशंस नए और इतने विस्तृत और गहरे आपके लिए तैयार करके लाते रहें. आपसे उम्मीद है कि आपकी नोटबुक बराबर बढ़ती रहे. तारीख के साथ एक डेडिकेटेड नोटबुक अलग बनाइए, बोधि बूस्टर के लिए एक नोटबुक अलग बनाइए और बोधि न्यूज के लिए एक अलग बनाइए. ध्यान रखें, यदि आप किसी भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, then this comprehensive offering of a self prep course plus Bodhi Prabodhan plus Bodhi News plus Bodhi Booster and of course Vartala premium discussion forum inside the members area, you don't need to do anything else other than that. So this and your effort is equal to success. If you are a professional, remember that the cutting edge inputs you are getting here will keep you in a completely different league in your company, organization or your own enterprise. Just be at it. With that, I come to the end of this Bodhi Prabodhan. I hope you enjoyed it. Keep learning, keep growing. इसी के साथ हम बोधि प्रबोधन के इस अंक को अब समाप्त करते हैं. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. नमस्ते, जय हिंद.